Hello students and welcome back to my channel. Today we will discuss a very important chapter of human physiology, that is respiratory and exchange of gases. The chapter is very important because ये complete जो system है, it is very important for the survival. Respiratory system के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि human beings में other physiological system की तरह well developed respiratory system भी present है. Okay, so humans have a well developed respiratory system, and this respiratory system mainly works in two parts. Yes, ये जो complete system है human का respiratory system, ये two important steps में working करता है. The first step is breathing, and the second step is cellular respiration. Breathing and cellular respiration. So, what is the difference between these two? क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो चैप्टर का बेसिक समझ में नहीं आएगा. Okay? So, breathing and cellular respiration are the two important steps for the functioning of human respiratory system. So let's understand what is the difference between these two processes of human being. अगर breathing की बात करें तो breathing का बहुत सिंपल सा जो प्रोसेस है वो एक फिजिकल प्रोसेस है. इट सिंपली मींस कि सराउंडिंग से एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन का अपटेक एंड CO2 का रिलीज इन द सराउंडिंग मीडियम. यानी ये जो पूरा प्रोसेस है it is related to the exchange of gases with the individual and the surrounding medium. बात समझ में आ रही होगी आपको. यानी यहां जो हम एक्सचेंज का प्रोसेस करेंगे वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ करेंगे. तो इट्स अ physical process and which involves gaseous exchange with the atmospheric air. Okay, तो ये atmospheric air के साथ जो हम gaseous exchange करते हैं. Okay, अब एक चीज तो आपको पता है कि atmospheric air में oxygen is about 21% and carbon dioxide is about 0.03%. So ये जो complete process है it is based on diffusion process. So it is based on diffusion, and diffusion simply means the movement of gases from the higher concentration to the lower concentration. अब वो जो high concentration और low concentration का variation है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी जब हम लोग आगे प्रोसेस पे आएंगे exchange of gases पे. And cellular respiration क्या है? Cellular respiration में अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो टर्म से ही समझ में आ जाता है कि टॉपिक बताना क्या चाहता है. Cellular respiration means the exchange of gases at the cellular level. For example, suppose you कोई cell है along with the nucleus and the cytoplasmic matrix, and a blood supply is there, and that blood carries oxygen and supplies oxygen to the body cell और टिश्यू. ओके, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, आप ऑक्सीजन को इंटरनली ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो टू द बॉडी सेल और टिश्यू. बात समझ में आ गई होगी आपको. यानी यहां जो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो सराउंडिंग के साथ है, यहां जो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो विद इन द बॉडी है, बिटवीन द बॉडी फ्लूइड्स एंड द बॉडी सेल्स और टिश्यू. ओके, so cellular respiration involves the exchange of gases between body fluids and body cells or tissue. So it simply means that cellular respiration is a biochemical process. Okay, it's a physical process and
cellular respiration is a biochemical process. पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा. The next point about breathing. As breathing में सिर्फ हमें gaseous exchange करना है with the surrounding medium. That simply means कि it does not involve any enzymatic action. कोई enzymatic action क्यों नहीं हुआ? क्योंकि it is totally based on diffusion process. It is totally based on concentration gradient. बात समझ में आ रही है ना? तो no enzymatic actions are involved. मैं सिंपली मेंशन कर रहा हूं नो एंजाइम्स, क्योंकि इस प्रोसेस में एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगा. बट इन सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? व्हेन सेल रिसीव्स ऑक्सीजन, जब यहां पे हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे विद इन द सेल, तो प्रोसेस क्या होगा कि इस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन होगा बायोमोलिक्यूल्स का, एंड दैट बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक्स टू लिबरेट energy. Okay, so this entire process is based on enzyme which is involved in the catabolic mechanism. बात समझ में आ रही होगी ना आपको? It simply means कि जब ये ऑक्सीजन एंटर होगा within the cell, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा and that oxidation liberates energy. तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि enzymatic activity होगी for the process of oxidation. Okay, so no enzymes and enzymes are involved. Enzymes are involved in the oxidation process for the liberation of energy भी आप mention कर सकते हो. Okay. Now the third component, as breathing में कोई enzymes इन्वॉल्व नहीं है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ये भी अंडरस्टूड है कि इस प्रोसेस से एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा. तो नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. यहां ऑक्सीडेशन होगा ना, तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब ही है कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. क्लियर है यहां तक आपको? तो अभी सिर्फ आपको बेसिक चीज समझनी थी बिटवीन द ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. बट अगर मैं सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या था? कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल और टिश्यू फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके, सो दैट रेस्पिरेशन again divides into two important types, and that types are aerobic and anaerobic respiration. So let's understand the difference between aerobic and anaerobic respiration. Okay, तो अब हम लोग यानी सेलुलर रेस्पिरेशन को फर्दर डिवाइड करेंगे. Cellular respiration, which further divides into aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, so aerobic and anaerobic, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि दोनों टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है for the functioning of human respiratory system. So in aerobic respiration first, पहले हम aerobic की ही बात करेंगे. In aerobic respiration, the complete process of respiration takes place in the presence of oxygen. So here the respiration takes place in the presence of oxygen. Okay, and in anaerobic respiration, it takes place in the absence of oxygen. Okay, पहली चीज तो क्लियर है ना कि aerobic respiration takes place in the presence of oxygen and it takes place in the absence of oxygen. Number 2, in aerobic respiration, अब देखिए इसी पे आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. As it involves oxygen, यहाँ पे
ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो ये अंडरस्टूड है कि यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ओके, यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। एंड यहां पे यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन जो एनारोबिक प्रोसेस में होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल होता है। ओके, द थर्ड कंपोनेंट, द थर्ड डिफरेंस मेनली, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी अंडरस्टूड है दैट इट लिबरेट्स मोर एनर्जी एज कंपेरेटिवली टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो यहां पे भी सिर्फ आपको एक चीज मेंशन करना है, इट लिबरेट्स मोर, तो अंडरस्टूड है कि इट लिबरेट्स लेस एनर्जी। ओके, अब एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो वो अंडरस्टूड है कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में होगा, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन आपको याद होगा, अगर आपने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो ये आपको डेफिनेटली याद होगा कि ग्लूकोज इज C6H12O6। इट सिंपली मींस कि अगर मैं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी छोड़ दूं तो यहां पे CH एंड O, तो ये जो H के ट्रू मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पे 12 मॉलिक्यूल मेंशन जो अंडरस्टूड है, H के ट्रू मॉलिक्यूल ले लें और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम ले लें तो वाटर, एंड सिमिलरली यहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना होगा तो C एंड ऑक्सीजन के हम मतलब ट्रू मॉलिक्यूल्स लेंगे तो CO2। तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा इनटू CO2 एंड H2O विद द लिबरेशन ऑफ ATP। ओके, तो दिस इज द मेन एम ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक में क्या होगा, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है विच इज 6 कार्बन कंपाउंड, इट ब्रेक्स इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। यहां पे कार्बन का 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इट्स 6 कार्बन कंपाउंड एंड इट ब्रेक्स इनटू पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एरोबिक में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा in the form of carbon dioxide, water and ATP, and in anaerobic respiration glucose is partially oxidized into pyruvate or pyruvic acid। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एरोबिक का तो एग्जांपल आपको पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है दे ऑल परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो कहीं आपको अदर ऑर्गेनिज्म से इसको रिलेट नहीं करना है। ओके, नो प्लांट्स, नो मोनरा, नो प्रोटिस्टा, नो फंगाई, सिर्फ आप ह्यूमन के सेल्स के बारे में ही मेंशन करोगे। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आरबीसी। वाई आरबीसी? क्योंकि आरबीसी के बारे में आप शायद क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ा होगा, अगर 11th में हो आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है तब भी आपने आरबीसी के बारे में पढ़ा होगा कि इट्स अ नॉन न्यूक्लियेट चेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट। इट सिंपली मींस कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो ये भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सेलुलर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब एरोबिक और मतलब जो रेस्पिरेशन है वो नहीं होगा। ओके, तो because of lack of mitochondria, RBC performs anaerobic respiration। ये क्वेश्चन आपको नीट्स में भी मिलता है और इसको बहुत सिंपली आपको याद रखना है, बिकॉज RBC ना न्यूक्लियस कंटेन करता है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है। One more example is there, that is skeletal muscles। एंड वाई स्केलेटल मसल्स है? क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने कभी पढ़ा है इसको,
स्केलेटल मसल्स को अगर आप ज्यादा यूज करते हो, ज्यादा यूज करने का मतलब क्या है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी एनहांस्ड हो जाती है ड्यूरिंग रनिंग, ड्यूरिंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तब क्या होता है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में मसल्स क्या करता है, एरोबिक तो करता ही है, एनारोबिक भी स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ये कंज्यूम कर सके मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ओके, तो स्केलेटल मसल्स परफॉर्म्स बोथ द रेस्पिरेशन, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आरबीसी का तो एक कंडीशन था कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, दैट्स व्हाई एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, बट skeletal muscles performs both the respiration. Okay, so let's move on the third topic, which is known as phases of respiration. Okay, तो phases भी बहुत सिंपल है, वो आपको सिर्फ रिलेट करना है from the external to the internal respiration. Okay, तो phases of respiration हम लोग अब डिस्कस करेंगे। So in phases of respiration में भी आपको एक चीज समझनी होगी, phases of respiration में इंपॉर्टेंस क्या है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, एक है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं in the breathing and in the respiration difference as well as in aerobic and anaerobic respiration. तो external and internal को differentiate करना हो तो बहुत सिंपली आपको ये चीज मेंशन करना होगा कि external respiration simply means the uptake of oxygen from the surrounding and the elimination of carbon dioxide into the surrounding. Okay, तो uptake of oxygen from surrounding means atmospheric air, from surrounding means air, and elimination of carbon dioxide into the surrounding, yani again air. Okay, and in internal respiration, body cells or tissues uptake oxygen from the body fluids. Okay, so इस पॉइंट को देख के एक चीज समझ में आ गई होगी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग एंड इंटरनल रेस्पिरेशन इज टॉकिंग अबाउट the respiration process, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। So let's start the human respiratory system and बहुत ध्यान से आपको समझना है। First of all, complete system समझने से पहले आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फिजियोलॉजी को समझने के लिए, प्रोसेस को समझने के लिए आपको प्रॉपर लोकेशन पता होना चाहिए, प्रॉपर एनाटॉमी पता होनी चाहिए। ओके, अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से पता है तो आपको फंक्शनिंग भी बहुत इजी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, तो इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। आप जानते हो ना कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ एक फंक्शन करता है। फंक्शन क्या करता है, आपको आउटसाइड जितने भी सोर्सेज ऑफ फूड है उसको बॉडी में एंटर करने में हेल्प करता है। मतलब यू ईट several kind of food which gets broken into simplest substances by the number of enzymes activity. बात समझ में आ रही है ना। तो डाइजेशन में enzymatic actions involved हैं which breaks the complex molecule into the simple form.
clear? But in respiration process actual breakdown takes place. Yes, respiration का मतलब सिर्फ गैस एक्सचेंज नहीं है. Respiration is all about the breakdown of the complex molecule to liberate energy that cells require. बात समझ में आ रही होगी आपको. यानी जो बॉडी सेल्स की टिश्यू की रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट इज एटीपी. ओके, एंड दैट एटीपी इज प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. बात समझ में आ रही होगी आपको. बट वो पूरा जो लिबरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक्शन एज वेल एज एटीपी का फॉर्मेशन, सब कुछ रेस्पिरेशन पे बेस्ड है. ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस को. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक चीज आपको याद रखनी है, द एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स. द फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट and the second one is respiratory organ. तो पहले एक ब्रीफ आइडिया आपको लेना है कि what are respiratory tracts and what are those components which are involved in respiratory organ. So respiratory tract starts from your nose part. Okay, ये जो आप देख रहे हो नोज की ओपनिंग, these are nostrils and this is the passage through which the air enters in your body. Okay, but ऐसा होता है ना, कुछ लोग माउथ से भी ब्रीथ करते हैं, तो इट डिपेंड्स. बट जो कंडीशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो एनाटॉमी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो नोज से स्टार्ट होती है. ओके, तो पहले ट्रैक्ट यानी पैसेज हम डिस्कस करेंगे थ्रू विच द ऑक्सीजन एंटर्स इन द बॉडी. So first one is nostrils or nose. Then nostril leads into, nose leads into pharynx. Okay, pharynx को common passage बोला जाता है for the food and for the air. The third one is larynx and the fourth one is trachea. Okay, and respiratory organ includes, मैं organ की बात कर रहा हूं, तो first one is bronchi. Okay, number 2 is bronchioles. मैं एक एक कंपोनेंट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहो ताकि सारे कंपोनेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. ओके, bronchi, bronchioles, then alveolar duct, and the fourth one is alveoli. Okay, so these are the respiratory tract and these are respiratory organ. So let's start with the first component of respiratory tract, that is nostrils or nose part. Okay, तो पहले नॉस्ट्रिल्स को हम लोग समझते हैं, फिर वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो नॉस्ट्रिल्स और नोज, पहले मैं नॉस्ट्रिल्स के बारे में बता दूं. दीज आर द पेयर्ड ओपनिंग ऑफ द नोज. तो नॉस्ट्रिल्स आर पेयर्ड ओपनिंग ऑफ द नोज. एंड इंपॉर्टेंस क्या है नॉस्ट्रिल्स के लिए कि nostrils leads into a passage known as nasal chamber. अब देखिए ये आपकी पेयर्ड ओपनिंग है nostrils. अगर आप अपने nostrils के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पूरा पैसेज है, जो पूरी कैविटी है, इसको बोलते हैं nasal passage. तो it leads into nasal passage. Okay, and nasal passage is divided by nasal septum. The nasal passage is divided by nasal septum. Okay,
सो इस पोर्शन के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, दैट योर नोज कंटेन 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स। ओके, पहले आप इन तीनों इंपॉर्टेंट रीजन्स को समझो, फिर हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो नॉस्ट्रल्स के जो 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, इसमें फर्स्ट वन इज वेस्टिब्युलर रीजन। ओके, वेस्टिब्युलर रीजन। अब ये वेस्टिब्युलर रीजन क्या है, इसको समझना हो तो बहुत इजीली आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ सकते हो। ओके, तो सपोज ये एक नोज है आपका। अगर आप नोज को बहुत ध्यान से देखो तो इसका एंटीरियर पार्ट जो है थोड़ा ब्रॉडेंड है, ब्रॉडेंड है ना, जो फ्लैशी पोर्शन आप एलिवेटेड देख रहे हो, यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हो अपने नोज का, इस पोर्शन को हम बोलते हैं वेस्टिब्युलर रीजन। ओके, इट सिंपली मीन्स कि अगर इसको आइडेंटिफाई करना हो तो द स्पेस just after the nostrils is known as vestibular region. The space just behind the external nostrils is known as vestibular region and it is characterized by, आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे? अगर आप इस पैसेज को देखोगे, इस पैसेज को अगर आप देखोगे internally, तो it consists of fine hair, okay, and इस पोर्शन पे जो नेजल सेप्टम जा रहा है, तो इस पोर्शन पे आपको ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट मिलेंगी, तो ऑयल ग्लैंड्स एंड फाइन हेयर। ओके, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, characterized by the presence of fine hairs and oil glands. Okay, अब ये अंडरस्टूड है। अगर इस पोर्शन पे फाइन हेयर्स एंड ऑयल ग्लैंड्स हैं, तो फंक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर रीजन इज टू फिल्टर द एयर। तो मैं फंक्शन को शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूं, फंक्शन इज टू फिल्टर द एयर। ओके, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होगा दे गेट स्टक इन द फाइन एयर ऑफ द नॉस्ट्रल्स एंड स्टिक्स टू द ऑयल ग्लैंड, क्योंकि ऑयल ग्लैंड सिक्रेट्स ऑयल एंड इन टर्न होगा क्या, जब डस्ट पार्टिकल इस ऑयल ग्लैंड की सिक्रीशन से स्टिक होगा तो ये रिलीज होगा एज अ म्यूकस। ओके, तो वेस्टिबुलर रीजन में आपको मेन जो स्ट्रक्चर याद रखना है, दैट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ फाइन हेयर एंड ऑयल ग्लैंड एंड फंक्शन इज टू फिल्टर द एयर। द सेकेंड रीजन ऑफ द नोज इज नोन एज रेस्पिरेटरी रीजन। अब रेस्पिरेटरी रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी पे हमारा ये पूरा चैप्टर बेस्ड है ना। तो रेस्पिरेटरी रीजन मींस ये जो वेस्टिबुलर का पोर्शन आप देख रहे हो, इसके बाद का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। मैं RR शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं ताकि आपको बस आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो। तो रेस्पिरेटरी रीजन को अगर कैरेक्टराइज करना हो तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली सप्लाई और रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। दैट्स व्हाई रेस्पिरेटरी रीजन इज नोन एज हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया। इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया एंड रेस्पिरेटरी रीजन का एक क्वेश्चन आपको नीट एग्जामिनेशन में मिलता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज लाइन्ड बाय pseudostratified
ciliated epithelium. Ciliated epithelium क्यों होगा यहाँ पे? Because cilia helps in the movement of substances. So it is highly vascularized area because of the rich network of blood capillaries, and it is lined by pseudostratified ciliated epithelium. Now the function of respiratory region is to condition the air and to filter the air. तो function भी बहुत important है इसका. Function is to filter the air, filter and condition the air, and condition the air. बात समझ में आ गई होगी आपको? तो this is the second important region of nostrils or nose. The third region is olfactory region. Olfactory region. And why olfactory region is important? क्योंकि olfactory region is characterized by the presence of olfactory epithelium. So it is characterized by the presence of olfactory epithelium, and olfactory epithelium का function क्या है? Olfactory epithelium detects smell. So ये जो sense organ की category में रखा गया ना nose को, वो because of the presence of olfactory epithelium. Okay? अगर आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो, या अगर आपने भी पढ़ा नहीं तो पढ़ोगे कि ऑल्फैक्टरी रीजन में मेनली जो कंपोनेंट है ब्रेन में, आपके सीएनएस का एक पार्ट है, फोरब्रेन का एक पार्ट है ऑल्फैक्टरी बल्ब. तो ऑल्फैक्टरी बल्ब में इंफॉर्मेशन जो है स्मेल की स्टोर रहती है, एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जो इंफॉर्मेशन जाती है वो जाती है बाय ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट. ट्रैक्ट मींस अ नर्व फाइबर, and that nerve fiber originates from olfactory epithelium. Clear है आपको? तो it is characterized by the presence of olfactory epithelium, and function is to detect smell of various kind. Okay, so this is all about nostrils and nose. So second component of respiratory tract is pharynx. एंड pharynx भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कॉमन पैसेज बन जाता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का भी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी. ओके, तो दैट्स व्हाई pharynx को कॉमन पैसेज बोला जाता है फॉर द फूड एंड एयर. So pharynx is a common passage for the food and air. Common passage for food and air. And pharynx is divided into three important components. Okay. The first one is nasopharynx, and nasopharynx means the passage from the nose to the pharynx is known as nasopharynx. Okay, passage from nose to pharynx, or passage from nasal chamber to pharynx. And नेरोफैरिंक्स में भी आपको चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो यूस्टेचियन कैनाल होती है आपकी ईयर में, वो भी नेरोफैरिंक्स पे ही ओपन होती है. ओके, तो यूस्टेचियन ट्यूब, इट्स अ कैनाल, इट्स अ ट्यूब ऑफ योर ईयर which balance the sound or which balance the audio. Okay, तो eustachian tube opens into it. Okay, तो नेज़ोफैरिंक्स में एटलीस्ट आपको ये तो बहुत अच्छे से याद रखना है. द सेकंड वन इज ओरोफैरिंक्स, एंड ओरोफैरिंक्स को
जंक्शन माना जाता है बिटवीन ओरल कैविटी एंड फैरिंक्स। ओके, जब आप ओरल कैविटी से फूड को स्वेलो कर लेते हो, जब तक आपके माउथ में, आपके ओरल कैविटी में फूड है, तब तक आप वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हो ना। बट ओरल कैविटी एंड फैरिंक्स के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं ओरोफैरिंजियल इस्थमस, एंड उस इस्थमस के बाद जो पैसेज बनता है, दैट पैसेज इज ओरोफैरिंक्स। ओके, सो पैसेज just after the oropharyngeal isthmus, passage just after the oropharyngeal isthmus. Okay, it acts as a valve between oral cavity and pharynx. So ये sufficient है ओरोफैरिंक्स को समझने के लिए, दैट द पैसेज जस्ट आफ्टर द ओरोफैरिंजियल isthmus. ओके, द थर्ड कंपोनेंट इज लैरिंजियोफैरिंक्स। लैरिंजियोफैरिंक्स को समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, या आप इस डायग्राम में खुद समझ सकते हो, आपके एंटीरियर पे जो पूरा आपका विंड पाइप जा रहा है, इस एंटीरियर रीजन पे आपको हायोड बोन फील होगा। तो एट द रीजन ऑफ हायोड बोन जो लोकेशन है लैरिंजियोफैरिंक्स की, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इट इज लोकेटेड एट द रीजन ऑफ हायोड बोन, लोकेटेड एट द रीजन ऑफ हायोड बोन। ओके, एंड यस, यू हैव टू रिमेंबर, ये जो हायोड बोन यहाँ प्रेजेंट होती है आपके विंड पाइप में, इसका फंक्शन होता है टंग को भी सपोर्ट करना, क्योंकि ये मेनली ये जो आपका फ्लोर है आपके माउथ का, उसमें जो टंग की अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट भी हायोड बोन से सपोर्टेड है। ओके, लिंगुअल फ्रेनम एक अटैचमेंट है आपकी टंग के नीचे, एंड एक सपोर्ट जो मिलता है टंग को, वो हायोड बोन से मिलता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो लैरिंजियोफैरिंक्स का लोकेशन तो बहुत इजीली है, इट इज लोकेटेड एट द रीजन ऑफ हायोड बोन एंड इट इज लाइन्ड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज लाइन्ड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज नीट में स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं और हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक कंपोनेंट का अपना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो फैरिंक्स के बाद द थर्ड कंपोनेंट इज लैरिंक्स। फिर लैरिंक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रैकिया को। तो लैरिंक्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है कि लैरिंक्स को वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, इसके अंदर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, बट इसमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग को पढ़ना है, इसलिए पहले मैं वोकल कॉर्ड को डिस्कस नहीं करूंगा, पहले हम लोग लैरिंक्स के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो लैरिंक्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। पहले मैं स्ट्रक्चर्स आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूं। ओके, द फर्स्ट वन इज ग्लॉटिस। पहला जो कंपोनेंट है लैरिंक्स का, दैट कंपोनेंट इज ग्लॉटिस। ओके, तो ग्लॉटिस को अगर बहुत अच्छे से आप अपनी एनाटॉमी देखो, तो फैरिंक्स के बाद, फैरिंक्स तो कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, यानी जब आप स्वेलो करोगे या जब आप इनहेल करोगे तो फैरिंक्स तक तो दोनों चीजें आएंगी, फूड भी आएगा, एयर भी आएगा। बट फैरिंक्स के बाद एक जंक्शन बन जाता है, जंक्शन बनता है ना, पीछे की तरफ आपकी फूड पाइप चली जाती है, आगे की तरफ आपकी विंड पाइप रहती है। इट सिंपली मींस कि फैरिंक्स से टू ट्यूब्स, इसलिए जो मैं इस तरह शो कर रहा हूं, आप इस व्यू से देख रहे हैं, बट आपको इस व्यू से समझना है कि इस तरह से जंक्शन बनता है, आगे की तरफ के विंड पाइप का पार्ट बन जाता है और पीछे की तरफ जो पोर्शन बनता है
ये एलिमेंट्री कैनाल का इसोफेगस का पार्ट बन जाता है। ओके, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है ग्लॉटिस। ओके, तो ग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है? क्योंकि ग्लॉटिस के अंदर ही वोकल कॉर्ड होती है, तो जब आप फूड को स्वेलो करते हो ग्लॉटिस कवर्ड हो जाता है बाय एपिग्लॉटिस, जिससे कि फूड विंडपाइप की तरफ ना आए और ये इसोफेगस की तरफ चला जाए, यानी फूड पाइप की तरफ चला जाए। तो ग्लॉटिस को बहुत अच्छे से आपको समझना है। ग्लॉटिस इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग, स्लिट लाइक ओपनिंग, एक ओपनिंग प्रेजेंट है ये, एंड इट इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस का, ये मेनली इसके जस्ट नीचे, मतलब अगर मैं इसी में शो करूं आपको, तो इस तरह से पोर्शन आता है ग्लॉटिस का। तो ग्लॉटिस को ये एपिग्लॉटिस कवर करता है ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ फूड। एंड ग्लॉटिस का जो चैम्बर है जिसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, इट्स अ कार्टिलेजिनस चैम्बर ऑफ अबाउट 4 centimeter. तो इट्स अ कार्टिलेजिनस चैम्बर ऑफ 4 centimeter. तो एक कंपोनेंट तो लैरिंक्स का ग्लॉटिस हो गया। सेकंड कंपोनेंट है लैरिंक्स का कार्टिलेज, एंड इसमें बहुत सारे कार्टिलेज प्रेजेंट है, टोटल 9। तो पहले हम लोग उन 9 कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे, फिर लैरिंक्स को कवर करेंगे। ओके, तो लैरिंक्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर के बाद, ग्लॉटिस के बाद, हम लोग डिस्कस करेंगे अब इसके सेकंड कंपोनेंट को, दैट इज कार्टिलेज। ये लैरिंक्स का ही पार्ट है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको लेके। तो मैं भी लैरिंक्स के सेकंड कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, कार्टिलेजेस। बहुत सारे कार्टिलेज प्रेजेंट है लैरिंक्स में। तो पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। द कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस को सिंगल, की आपको एक चीज और याद रखनी है, टोटल 9 कार्टिलेज हैं लैरिंक्स के पास। अब इस 9 कार्टिलेज में भी 6 जो है वो पेयर्ड है एंड 3 अनपेयर्ड है। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो एपिग्लॉटिस इस कंडीशन में आता है, ये अनपेयर्ड है। तो अगर आप डायग्राम से देखो तो ये जो फर्स्ट कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस, which covers the glottis during the swallowing of food. So it's a single cartilage, single and leaf-like cartilage, leaf-like cartilage, which covers the glottis during swallowing of food. During swallowing of food आप मेंशन कर लोगे तो ये चीज इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, अब एपिग्लॉटिस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्टिलेज है, एक सिंगल ये थिन कार्टिलेज होता है, इसको इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं। एंड ये इलास्टिक, सपोज एक इलास्टिक कार्टिलेज है। ओके, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इलास्टिक कार्टिलेज है। इसकी कवरिंग जो है वो है स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो पहले मैं ऊपर मेंशन कर दूं, जो ऊपर की कवरिंग है इसकी वो है स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ओके, और नीचे की तरफ जो है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, बीच में कार्टिलेज एंड कार्टिलेज के ऊपर भी कवरिंग एंड नीचे भी कवरिंग। तो जो नीचे वाली कवरिंग होगी ये होगी सीडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम।
ओके, तो सेम चीज एपिग्लॉटिस में आपको मेंशन करना है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि इट्स अ थिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज which is covered by stratified non-keratinized epithelium and below it, नीचे की तरफ क्या है, बिलो सरफेस पे क्या है, सीड्रो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और अपर सरफेस पे स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको एपिग्लॉटिस का बहुत अच्छे से याद रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट कार्टिलेज फ्रॉम द एंटीरियर व्यू। ओके, ये चीज क्लियर हो गया आपको। सेकंड जो कार्टिलेज है वो भी सिंगल है एंड इट इज अ large cartilage which supports the larynx in front and from the lateral side and it is known as thyroid cartilage। तो ये हो गया आपका सेकंड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड के लिए एक चीज बहुत अच्छे से आपको समझना है, इट्स अ थायराइड कार्टिलेज। तो ये अंडरस्टूड है कि ये कवर करेगा थायराइड ग्लैंड को। ओके, तो थायराइड को सिंगल, क्योंकि ये भी इसी कैटेगरी का पार्ट है, एपिग्लॉटिस भी सिंगल था, थायराइड भी सिंगल है, सिंगल लार्ज साइज कार्टिलेज एंड it supports the larynx in front and lateral sides। Okay, one more important point, it covers the thyroid gland, and when it covers the thyroid gland it forms conical projection at the anterior side। that conical projection is known as Adam's apple। so it forms conical projection called Adam's apple or Pomus Adami। Adam's apple or Pomus Adami। Okay, so this is the second cartilage from the anterior view। The third cartilage from the anterior side is, ये जो cartilage आप देख रहे हो, this is cricoid cartilage। Okay, तो third cartilage is cricoid cartilage and cricoid is again single cartilage and it is a half ring like cartilage। तो it's a single cartilage or half ring like cartilage, single or हाफ रिंग लाइक मींस, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हाफ रिंग लाइक को मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि अगर आप देखो कोई बैंगल अगर आप या कोई चूड़ी अगर ब्रेक हो जाती है तो उसका एक पोर्शन जब ब्रेक होगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, तो इससे होगा क्या, ये आगे की तरफ तो आके नैरो हो जाएगा एंड पीछे की तरफ जाके ब्रॉड हो जाएगा। So it is narrow from the anterior end and broad from the posterior end। Okay, broad from posterior end। It's a hyaline cartilage। मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ कार्टिलेज, इट्स अ hyaline कार्टिलेज। ओके, तो थ्री जो सिंगल कार्टिलेज है, एपिग्लॉटिस, थायराइड एंड क्राइकोइड, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग कवर करेंगे ये एंटीरियर व्यू, तो उन्होंने कवर कर लिया एपिग्लॉटिस, थायराइड एंड क्राइकोइड। अब हम लोग कवर करेंगे 6 पेयर्ड वाले को। तो जो 6 पेयर्ड कार्टिलेज है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है which is present at the posterior end of cricoid,
इट इज नोन एज एरिटिनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो क्राइकोइड को पहले आप समझ लो, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। सपोज ये क्राइकोइड है, तो इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं शो करूं तो ये कुछ इस तरह से जाए, नैरो होगा एंटीरियर साइड पे एंड ब्रॉड होगा पोस्टीरियर साइड पे, और ये हाफ रिंग था ना, ये पूरी तरह से कवर नहीं करेगा। तो पोस्टीरियर साइड पे टू स्मॉल लोब लाइक कार्टिलेज होंगे, उस कार्टिलेज को बोलते हैं एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये हो गया लोकेशन एरिटिनॉइड कार्टिलेज। बात समझ में आ रही होगी आपको? So the next cartilage is arytenoid. Arytenoid cartilage में अगर लोकेशन की बात करें तो it lies at the posterior end of cricoid cartilage. तो it lies at the posterior end of cricoid cartilage. ये चीज मेंशन है यहाँ पे कि एक एरिटिनॉइड यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है। It simply means it is a paired cartilage and it is hyaline in nature. तो cartilage is hyaline means very thin. So एरिटिनॉइड का लोकेशन एंड स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे सेकेंड पेयर्ड कार्टिलेज की, which is known as corniculate. Corniculate So corniculate is also a paired, a nodule-like paired cartilage and it lies over the arytenoid cartilage. ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको एनाटॉमी बता रहा हूं कि सपोज ये अगर क्राइकोइड कार्टिलेज है फ्रॉम द एंटीरियर साइड, तो जो इसका ब्रॉड एंड होगा पोस्टीरियर साइड पे, उसमें सबसे पहले एरिटिनॉइड, मैं ए से मेंशन कर रहा हूं एरिटिनॉइड, देन कॉर्निकुलेट एंड कॉर्निकुलेट के बाद इस तरह से रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर आएगा कार्टिलेज का विच इज नोन एज क्यूनिफॉर्म। ओके, तो अभी हम थर्ड को डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कॉर्निकुलेट को। ठीक है, लोकेशन समझ में आ गई होगी। इट लाइज जस्ट अबव द एरिटिनॉइड। तो अगेन दीज आर पेयर्ड nodule-like cartilage and lies above the arytenoid cartilage. Okay, and the nature of cartilage is elastic. तो ये elastic cartilage है, बट जो एरिटिनॉइड था वो हाइलिन था। क्लियर है यहां तक आपको? अब इसके बाद जो लास्ट कार्टिलेज है वो है क्यूनिफॉर्म, एंड क्यूनिफॉर्म इज सिचुएटेड और लोकेटेड एट अबव द कॉर्निकुलेट। तो इट लाइज अबव द corniculate and it is also a paired cartilage and slightly elongated, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्लाइटली जो elongated स्ट्रक्चर है, तो इट इज स्लाइटली elongated. And one more thing, the nature of cuneiform cartilage is again hyaline. Clear? अब लैरिंक्स के कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के बाद
हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट कंपोनेंट ट्रैकिया. सो द फोर्थ कंपोनेंट इज ट्रैकिया. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मैं सिर्फ इसको ही शो कर रहा हूं. सपोज ये ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो it runs in the mid of thoracic cavity and divides into two bronchi, means a pair of primary bronchi which enters into lungs. बात समझ में आ रही है आपको? तो अब एक्चुअली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंड पाइप वाले क्वेश्चन को, because trachea is also known as windpipe. And it is a tubular structure which runs in the mid of thoracic cavity. So it's a tubular structure. Okay, and इसके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के डायमीटर पे बात करूं तो डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एंड इट रन्स इन द मिड ऑफ thoracic cavity, space which is known as mediastinum. तो mid of thoracic cavity. एंड ट्रैकिया के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? इट इज सपोर्टेड बाय नॉन कोलैप्सिबल सी शेप हाइलिन कार्टिलेज. तो इट इज सपोर्टेड बाय नॉन कोलैप्सिबल सी शेप हाइलिन कार्टिलेज. ओके, so that's all about respiratory tract.